السلام علیکم ناظرین، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ملک بھر میں عید کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہریوں نے فریضے کی ادائیگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کورونا کیسز اور اموات میں کمی کا رجحان، 24 گھنٹے میں 8 ہلاکتیں، 330 نئے کیسز سامنے آئے۔ LOC پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور معاون خصوصی معید یوسف لائن آف کنٹرول پہنچ گئے۔ رہنما PTI حلیم عادل شیخ کا 5 اگست کو کراچی سے سکر تک لانگ مارچ کا اعلان۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ 22 کروڑ پاکستانی ثابت کریں گے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے مختلف مقامات کا دورہ، DMCs کی کارکردگی اور ضلع انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ۔ NDMA نے بھی نالوں کی صفائی کا آغاز کر دیا۔ چڑیا گھر میں جانوروں کی ہلاکت، درتاج گٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ کا کہنا تھا کہ جو جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا کیا خیال رکھیں گے۔ کراچی میں 7 اور 8 اگست کو پہلے سے زیادہ بارشیں برس سکتی ہیں، اربن فلڈنگ کا خطرہ، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن ختم، مختلف شعبوں کو کھولنے کی اجازت ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ٹورنٹو میں 2 ماہ کے دوران تیز رفتاری کی حد عبور کرنے والے 8000 ڈرائیوروں پر جرمانے۔ پروگرام کا مقصد روڈ سیفٹی کو بڑھانا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے GTA کے لیے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ فلڈ وارننگ بھی جاری کی گئی۔ کینیڈا امریکہ کی سرحدی بندش میں 21 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 1 کینیڈین کینیڈا امریکہ کی سرحد بند ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری، متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,16,884 ہو گئی۔ مونٹریال میں شدید طوفان کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم، شہر میں طوفان کا سبب بننے والی بارش کی وارننگ جاری کی گئی تھی۔ امریکی نجی خلائی کمپنی کے پہلے خلائی جہاز کا مشن مکمل ہو گیا، 2 امریکی خلانور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ، مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,82,00,000 سے اوپر چلی گئی، جبکہ 6,92,794 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ مائیکروسافٹ کا ٹک ٹاک خریدنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، امریکی صدر نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کی دھمکی دے ڈالی۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی خوفناک آگ قابو سے باہر، 8,000 سے زائد رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شہر بھر میں اجتماعی قربانیوں کے بھی بے شمار مراکز قائم کیے گئے، جہاں سے شہری گوشت لے جا کر اہل خانہ، دوستوں اور غریب و نادار افراد میں تقسیم کرتے نظر آئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر میں عید کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہریوں نے فریضے کی ادائیگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو کل قربانی نہیں کر سکے انہوں نے آج چھریاں سنبھال لیں، جبکہ کل کے مہمان آج میزبان بنے۔ بچے بھی خوب انجوائے کرنے میں ہیں مصروف۔ ملک بھر میں جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کا کام بھی جاری ہے، تاہم بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے آلائشیں اٹھانے کے کام میں سستی کی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ قربانی اجتماعی ہو یا انفرادی استطاعت کے مطابق سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانوروں سے پیار و محبت کے جذبات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ قربانی کرنے والے کہتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت دل افسردہ ضرور ہوتا ہے۔ بچے تو اپنے پیارے جانوروں کی قربانی پر بے حد رنجیدہ ہو جاتے ہیں، مگر بڑے انہیں سنت ابراہیمی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ شہر بھر میں اجتماعی قربانیوں کے بھی بے شمار مراکز قائم کیے گئے، جہاں سے شہری گوشت لے جا کر اہل خانہ، دوستوں اور غریبوں نادار افراد میں تقسیم کرتے نظر آئے۔
पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में कमी का रुझान है। एक दिन में 8 हलाकतें और 330 अफराद में कोरोना मस्बत पाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में कमी का रुझान है। एक दिन में 8 हलाकतें और 330 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में यौमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस और अमवात में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। इस हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना वायरस से 8 अफराद जाबहक हुए और 330 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 25,172 है। अब तक 2,48,873 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ताहाल 5,984 अफराद जाबहक हो चुके हैं। 24 घंटे में मुल्क भर में 11,026 कोरोना टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना के 1,595 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि कोरोना मरीजों के लिए 1,859 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं। इसके अलावा मुल्क भर में कोरोना के 213 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं और अब तक 20,21,196 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि 3 रोज कबल 21,228 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,114 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,026 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 330 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि LOC पर कश्मीरियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि LOC पर तैनात पाक फ़ौज के जवानों की अज़मत, हिम्मत और जज्बे को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक और मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ लाइन ऑफ कंट्रोल पहुँच गए। LOC पर अस्करी हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ब्रीफिंग दी। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम को उनके जर्री सपूतों की जमा मर्दी और बहादुरी पर फ़ख्र है। LOC पर निहत्ते कश्मीरियों पर भारत की जानिब से बिला जवाज फायरिंग की जाती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि LOC पर कश्मीरियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि LOC पर भारत की जानिब से मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है। कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इकदाम को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए LOC पर जा रहे हैं। मीडिया नुमाइंदों और अस्करी हुक्काम के साथ LOC के चिरीकोट सेक्टर का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया नुमाइंदों को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने के शवाहिद के हवाले से आगाह किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा मुज़फ़्फ़राबाद भी जाएंगे, जहां आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब और मैं इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर, और इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज़ फायरिंग का निशाना बनते हैं और निहत्ते होते हैं, सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी हैं। और दूसरा एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि आप जो मर्जी फैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी ता वक्त के उनको हक़ के राय दही उनका जो उनका है उसको कबूल कर नहीं दिया जाता और कश्मीर आज़ाद नहीं होता। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना था कि 5 अगस्त को कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का 1 साल मुकम्मल होने वाला है। इस सिलसिले में कराची तक ट्रेन मार्च करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने 5 अगस्त को कराची से सक्खर तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अगस्त को कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का 1 साल मुकम्मल होने वाला है। इस सिलसिले में कराची तक सक्खर ट्रेन मार्च करेंगे। हलीम आदिल शेख ने तमाम सियासी जमातों को कश्मीर कॉज के लिए इस लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत भी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया को मालूम है कि कश्मीर में गुजरात का कसाई क्या कर रहा है। 5 अगस्त को पूरी दुनिया के मुसलमान यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि इस रोज 22 करोड़ पाकिस्तानी ये साबित करेंगे कि कश्मीर हमारा है। सियासी जमातों से कहता हूँ कि 5 अगस्त को कश्मीर को कौमी मसला समझें, चाहे अपने तौर पर ही निकले। जज्बे के साथ, जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ अपने कश्मीरी भाइयों के जो यौम उनका जो इस्तेहसाल किया गया 1 साल, जिस अंदाज से इंडियन आर्मी ने गासबाना कब्जा किया, तो इंशाअल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया देखेगी कि 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। NDMA के ताउन से कराची में बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। पाक फौज और FWO की टीमें गुज्जर नाले का कचरा निकालने पहुंच गईं। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और नालों की सफाई सुथराई के इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दौरे के दौरान DMCs की कारकर्दगी और जिला इंतजामिया के इक़दामात का जायजा लिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैयद मुराद अली शाह ने क़यूमाबाद में आलाइशों को ठिकाने लगाने की जगह का मुआयना भी किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि MD सॉलिड वेस्ट काशिफ गुलजार ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 6 अजला में 85 आलाइशें कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। MD सॉलिड वेस्ट काशिफ गुलजार ने कहा कि 7,892 टन आलाइशें जिला जुनूबी, 9,351 टन आलाइशें जिला शर्की और 3,738 टन आलाइशें जिला मरीर से उठाई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि मुराद अली शाह ने महमूदाबाद नाले का भी मुआयना किया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में कहा गया कि महमूदाबाद नाले की सफाई का काम जारी है। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि लियाकताबाद में वज़ीर आला को देखकर आवाम मिलने पहुंच गई। आवाम ने वज़ीर आला से घरों और गलियों की सफाई न होने की भी शिकायत की। वज़ीर आला ने हिदायत करते हुए कहा कि मुझे काम चाहिए, लोगों की सही तरीके से देखभाल करें। वज़ीर आला सिंध का औरंगी टाउन के नाले का मुआयना और नाले की सफाई के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने हिदायत दी कि नाले की सफाई के काम को मजीद तेज करें। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ईदगाह ग्राउंड का दौरा किया, जहाँ उन्होंने आलाइशें कलेक्शन पॉइंट का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह KDA चौरंगी पहुंचे तो चेयरमैन DMC सेंट्रल रेहान हाशमी ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के सतून सैफी कॉलेज के साथ नाले में है, जिसकी वजह से ये नाला बंद हो गया है। इस मसले के हल तक ये इलाका बारिशों में डूबता रहेगा। चेयरमैन DMC सेंट्रल ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि नाला ग्रीन लाइन के ट्रैक के नीचे आ गया है, जिसकी वजह से हैदरी मार्केट और रिहायशी इलाके डूब जाते हैं। इस मसले का हल जल्द निकालने की जरूरत है। इसके बाद वज़ीर आला सिंध ने नागन चौरंगी का दौरा किया, जहाँ रेहान हाशमी और रिहायशियों ने वज़ीर आला सिंध को मसले से आगाह करते हुए कहा कि इन नालों का कोई मुतबादल नहीं बना तो निकासी का मसला रहेगा। वाज़ेह है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से कराची में बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। पाक फौज और FWO की टीमें गुज्जर नाले का कचरा निकालने पहुँच गई हैं। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। उन एरियाज में जहाँ पहले प्रॉब्लम नहीं होता था उनको मैं देखने आया हूँ, इसलिए कि बारिशें बिल्कुल हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई है, थोड़े ड्यूरेशन में हुई हैं, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें आते थे, लियारी का इलाका ठीक रहा, शारे फैसल ठीक रहा, ये कुछ नए इलाकों में जो इश्यूज़ आए वो मैं देखने निकला हूँ। और इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अभी जो नया बारिश का स्पेल आने वाला है, इसमें इन एरियाज़ को हम जल्दी टारगेट करें और जो एक्शंस लेने पड़े वो लिए जाए। मैं किसी पे कुछ नहीं कहूँगा, वो तनकीद करते रहें, उनकी अच्छी बात है, उनको यही आता है और ये करते रहें। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
चिड़िया घर में जानवरों की हलाकत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनोल्ला ने केस की समाअत के दौरान चिड़िया घर में जानवरों की हलाकत का नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया और वजीर मुमलिकत जरताज गुल मौबन खुसूसी मलिक अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया दिया। अदालत ने कार्रवाई के लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर अहदेदारों के नाम भी तलब करते हुए कि चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली कल जाती हैसियत में पेश हों। अदालत का कहना था कि बादियो नजर में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली से जानवर हलाक हुए। हालांकि 21 मई के फैसले में अदालत ने कहा था कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जानवरों की मुंतकली का जिम्मेदार होगा। अदालत ने करार दिया कि 16 मार्च को वफाकी काबीना की मंजूरी से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का नोटिफिकेशन पेश किया गया और अदालत को बताया गया था कि जानवरों की पनाहगाह के बजाय शेर लाहौर मुंतकिल किए जा रहे हैं। अदालत का कहना था कि वजारत माहौलियाती तब्दीली के हुक्काम जानवरों की मुंतकली से ज्यादा मैनेजमेंट का कंट्रोल लेने में दिलचस्पी रखते हैं। चीफ जस्टिस अतर मनोल्ला ने इस्तफसार किया कि वजारत माहौलियाती तब्दीली की तरफ से कौन आया है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि चिड़ियाघर से शेर को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो वो हलाक हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये सब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली है। क्या आपने चिड़ियाघर से मुतालिक इस अदालत का फैसला देखा है? वजारत माहौलियाती तब्दीली, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वफाकी तरक्याती इदारा सब सियासत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन दिया था कि बोर्ड में कौन होगा। वजीर आजम के माहौलियाती तब्दीली के मुआविन खुसूसी कौन है? माहौलियाती तब्दीली की वजीर जरताज गुल हैं, क्योंकि इन तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तमाम मेंबरान ने इस अदालत के फैसले की तौहीन की। क्या इन तमाम मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज की गई? चीफ जस्टिस अतर मनोल्ला का कहना था कि जो जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का क्या ख्याल रखेंगे। अदालत ने मुतालिका फरीकैन को तलब करते हुए केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि रन ऑफ कच्छ और खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव का सिस्टम यकजा होकर 6 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा और बारिश के साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में 7 और 8 अगस्त को पहले से ज्यादा बारिशें बरस सकती हैं, जिसके सबब शहर समेत ज़ेरी सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खतरा हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रन ऑफ कच्छ और खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव का सिस्टम यकजा होकर 6 अगस्त को सिंध में दाखिल हो जाएगा और बारिश के साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़राए मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में कम हवा के 2 मुख्तलिफ दबाव बन रहे हैं और ये दोनों सिस्टम गुजरात के करीब मिलने के बाद सिंध में दाखिल हो जाएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिस्टम 6 अगस्त से सिंध के साहिली इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम ने अपने इम्कान को हकीकत में बदला तो कराची समेत ज़ेरी सिंध में बारिश भी हो सकती है और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी रहेगा। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने ये पेश गोई भी की है कि हालिया मानसून के दौरान पहले से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए गुज़िश्ता कई माह से लॉकडाउन जारी है। ताहम पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन 5 अगस्त के बजाय 3 अगस्त से ही ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने कोरोना लॉकडाउन खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए गुज़िश्ता कई माह से लॉकडाउन जारी है। ताहम पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन खत्म 5 अगस्त के बजाय 3 अगस्त से ही कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन खत्म करके स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का कहना था कि मुतालिका इदारे तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तमाम कारोबारी मुकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पीर ता जुमा खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इज्तिमा की इजाजत होगी, जबकि मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, आटा चक्की तंदूर, ज़राई वर्कशॉप 24 घंटे खुली रखने की भी इजाजत होगी। सेक्रेटरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन में कहा कि तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा बदस्तूर बंद रहेंगे। ताहम कॉल सेंटर्स
سینٹرز کو 50% اسٹاف کے ساتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ سیکریٹری ہیلتھ کیئر نے کہا کہ بین الاضلاع ٹرانسپورٹ کو 24 گھنٹے چلنے کی اجازت ہوگی اور گروسری اور کریانہ اسٹور صبح 9 سے شام 7 تک ہفتے بھر کھلے رہیں گے، جبکہ چرچ صرف اتوار کو صبح 7 سے شام 5 بجے تک عبادت کے لیے کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے جمع ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ سیکریٹری ہیلتھ کیئر کا مزید کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن کا اطلاق فی الفور ہوگا، 17 اگست تک نافذ العمل رہے گا۔ حکومت پنجاب نے مویشی منڈیوں سے لیے گئے سیمپلز کے حوصلہ افزا نتائج آنے کے بعد لاک ڈاؤن کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے۔ مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس نہ ہونے پر صوبائی حکومت نے 3 اگست کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ علاوہ ازیں عید پر مارکیٹوں کی بندش کے بعد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے امکانات کم ہوئے، جس کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔